हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर AC generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. AC generator is a device that converts mechanical energy into electrical energy. Working principle of AC generator. AC generator का working principle क्या है? An AC generator works on the principle of electromagnetic induction. An AC generator works on the principle of electromagnetic induction. That means when a current loop or wire loop is rotated in a magnetic field, an EMF is induced in it due to change in magnetic flux. This is the working principle of AC generator. Now construction, how it is consisted of. An AC generator is consisted of the following important parts. First is two field magnets north and south. These magnets are separated apart and a metallic shaft along with an armature is fixed. इस metallic shaft के along एक armature fix किया हुआ PQRS. This armature contains very large number of turns and it is connected to two rings. These are called slip rings. Rings 1 R1 and ring 2 R2. आर्मेचर PQ का जो एंड है वो यहां पर कनेक्टेड है रिंग 1 के साथ एंड इसका जो RS एंड है वो कनेक्टेड है रिंग 2 के साथ. These two rings are connected with the help of two carbon brushes to the external circuit. Brushes means जब हम किसी रिंग को घुमाएंगे तो अगर ये इसके साथ मैंने वायर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो ये वायर इसके ऊपर लिपटता चला जाएगा. तो जस्ट रिंग इज रोटेटेड और इसके ऊपर ये ब्रश स्लिप करता है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रश. ये कार्बन यानी ग्रेफाइट के बने होते हैं. तो कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2. तो वंस अगेन a generator is consisted of an armature which is fixed on a metallic shaft and connected to two rings R1 and R2. These are bimetallic rings. Bimetallic means अंदर से ये इंसुलेटिंग होते हैं और बाहर से ये मेटेलिक यानी कंडक्टिंग होते हैं. रिंग के ऊपर लगे होते हैं दो कार्बन ब्रशेस and this whole arrangement is set up between the poles of a strong magnet called field magnet. On the other end of shaft, a rotor is connected which is connected to the engine that is used to rotate it. So this rotor rotates the armature. So this is the construction of AC generator. Now the working, how an AC generator works. Working of AC generator. We suppose that rotor rotates the coil. It rotates the coil in clockwise manner such that arm PQ moves up and arm RS moves down. आर्म PQ पहले हाफ में मूव कर रहे हैं अप साइड जबकि आर्म RS जा रहा है डाउन साइड. जब ये साइड अप आएगा तो दिस इज द मोशन ऑफ PQ एंड दिस इज द मोशन ऑफ RS. फ्रॉम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से बात करें तो राइट हैंड रूल कहता है दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF. लेट अस सी. दिस finger points in the direction of magnetic field which is from positive to negative यानी north pole to south pole. This is the direction. This is the direction of motion of PQ. तो PQ का मोशन अप साइड है. सो इसमें करंट ऊपर की तरफ होगा. करंट इज इंड्यूस्ड अप साइड लाइक दिस. जब मैं इस कॉइल की बात करता हूं साइड आर्म RS की बात करता हूं सिंस इट इज गोइंग डाउन सो करंट विल बी डाउन साइड. तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप विल बी फ्रॉम B1 टू B2. रिंग 1 से रिंग 2 की तरफ करंट फ्लो करेगा यानी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ B1 सर्व्स एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड B2 सर्व्स एज नेगेटिव टर्मिनल. नाउ द हाफ रोटेशन इज कंप्लीटेड. नाउ व्हाट हैपेंस जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा RS और यहां पर चला जाएगा P और Q. Now the second half rotation begins. क्योंकि RS तो कनेक्टेड था रिंग 2 पर और PQ कनेक्टेड था रिंग 1 के ऊपर. तो this will be the situation of coil. Again, since coil is rotating in the same manner clockwise, so from right hand rule, अगर मैं right hand rule से देखूं तो this is the direction of magnetic field. Now arm
RS is moving up, arm RS ऊपर जा रही है and arm PQ is moving down, so current will be in the same manner, but this current initiates from B2 and this current ends at B1. So the direction of current flow from Fleming right hand rule is from B2 to B1, यानी B1 serves as negative terminal and B2 serves as positive terminal. This way we can say when we rotate the further on, the third round completes, PQ will be this side, RS will be this side, and again current will be from B1 to B2, and during the second fourth half rotation current will be B2 to B1. This process goes on till the रोटेशन इन द कॉइल कंटिन्यूज. आर्मेचर जब तक रोटेट करता रहेगा इसमें हाफ रोटेशन आते रहेंगे एंड करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन अल्टरनेटिवली. यानी वी हैव सीन ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन अल्टरनेटिवली और साइनोसॉइडली. दिस इज अ डायरेक्शन इंडिकेटर. तो वी कैन से द करंट इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर इज अल्टरनेटिंग करंट. जब हम डीसी जनरेटर लेते हैं तो डीसी जनरेटर में बस डिफरेंस ये होता है कि हम यहाँ पर स्लिप रिंग की बजाय एक ही रिंग के दो हिस्से कर देते और इस पर स्लिप लगा देते. इसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर? वर्किंग इज सेम, ओनली द रिंग्स चेंज. इफ वी टेक स्लिप रिंग्स इट विल इंड्यूस एसी करंट. इफ वी यूज स्प्लिट रिंग्स, एक रिंग के दो हिस्से मैंने काट दिए, ये B1 और ये B2 बन जाएगा. इधर मैंने ब्रश 2 लगा देना है. दिस विल सर्व एज the DC generator. Theory of AC generator. AC generator किस थ्योरी पे काम करता है? Let us see. We have assumed an armature whose area is A, containing total number of turns N. It is rotated in a uniform magnetic field B at constant angular speed omega. Since coil is rotating, so it is sweeping some angle. Let us assume angle theta be the angle swept by the armature in time t. Tan theta equal to omega into t. क्योंकि हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है एंगल डिवाइडेड बाय टाइम. यानी ओमेगा वी नो इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी. सो थीटा बिकम्स ओमेगा टी. नाउ ये इस पर सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है कॉइल का, ना तो एरिया बदल रहा है. और मैग्नेटिक वी हैव ऑलरेडी टेकन कांस्टेंट. सो flux linked with the armature is given by phi equals to NBA cos theta. But हमें पता है theta is omega t, so we can write NBA cos omega t. This is the flux linked with the armature in time t. Time t पर इतना flux link था. हमें पता है from Faraday-Lenz law the induced EMF in a coil is given by d phi by dt with a negative sign, यानी E equals to minus d phi by dt. If I put the value of phi, then minus d by dt of NBA cos omega t. Since NBA all three are constant, so will be taken out of differentiation. So E will be minus NBA cos d by dt of cos omega t. Cos omega t का differentiation मुझे करना है. Since cos omega t is differentiated with a negative sign, सो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी विद मल्टीप्लाई ऑफ ओमेगा, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है जो बाहर मल्टीप्लाई में आएगा. सो एन बी ए विद नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड बाय माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो यहां से ओमेगा को बाहर निकाला जाएगा तो व्हाट वी हैव माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर एट टाइम टी. If I assume sin omega t is maximum, यानी अगर मैं मान लूं कि sin omega t maximum है और maximum value of sin की होती है +1, यानी this is maximum, so induced EMF भी maximum हो जाएगा. क्योंकि हमें पता है ना तो n बदलने वाला ड्यूरिंग द रोटेशन, ना ही d बदलता, ना a बदलता, और ओमेगा भी हमने कांस्टेंट लिया हुआ है ऑलरेडी. सो सिर्फ एक ही चीज बदल रही थी, वो था साइन, और साइन को भी मैंने मैक्सिमाइज कर दिया. सो EMF will be maximum, and this maximum EMF is given by NBA omega that we write E naught. E naught is the notation for maximum EMF that we call peak value of EMF or amplitude of EMF. So the expression for alternating EMF is E equal to E naught sin omega t. ये हमारा AC
में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, उसका एक्सप्रेशन है। नाउ अगर मैं मान लूं कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस आर था और ये क्लोज लूप था, देन इसमें करंट इंड्यूस होगा आई, विच इज गिवन बाई ई अपॉन आर, एंड आई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई की जगह रख दूंगा अपॉन आर, ई नॉट बाई आर इज कॉल्ड आई नॉट, दैट वी कॉल पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी करंट एम्पलीट्यूड. So I equal to I naught sin omega t. This is the expression of AC current. AC is a family, current, EMF, power, ये सब इसके factors हैं. तो that's why I'm calling it AC current. Also I equal to I naught sin omega t. This is the expression of sinusoidal current या AC current. Now I is called instantaneous value. किसी time t पर current की value इससे मिलेगी. I naught is called peak value और current amplitude. आई नॉट को हम पीक वैल्यू ऑफ एसी या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी या करंट एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं. ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज ऑफ करंट. नाउ ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं करंट को या ईएमएफ को? लेट अस अंडरस्टैंड विद करंट इटसेल्फ. हमने एक टी लाइन का ग्राफ बनाना है जिसमें सेंट्रल लाइन जीरो को रिप्रेजेंट करती है. इसकी वर्टिकल लाइन पर ऊपर प्लस आई जीरो, क्योंकि एसी की वैल्यू प्लस माइनस आई जीरो के बीच में बदलने वाली है. प्लस आई जीरो और नीचे की तरफ मैंने लिख दिया माइनस आई जीरो. दिस इज माइनस आई नॉट. ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम टी को लिया है. टाइम के मैंने 4 फैक्टर किए. ये टाइम पीरियड ऑफ एसी यानी कंप्लीट टाइम जिसमें ये पूरा करेगा एक चक्कर. दिस इज व्हाट टी बाई 4, टी बाई 2, 3t बाई 4, टी एंड 5t. इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आप सिंपल हार्मोनिक वेव का क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. सो यहां पर जब हम देखते हैं हमारे पास ये जो है ओमेगा टी, बेसिकली इस ओमेगा टी को मैं थोड़ा सा यहां पर, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन टी. सो आई कैन से साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी. जब मेरा टाइम t जीरो है तो यहां पर मैं जीरो ले लूंगा तो होल वैल्यू बिकम जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है. साइन जीरो की वैल्यू जीरो यानी करंट हो जाएगा जीरो. उस टाइम t इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो है. जब मैंने टाइम को लिया यहां पर t बाई 4, तो t की जगह मैं t बाई 4 रखूंगा. एंड व्हाट कम्स विद मी 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू टी बाई 4. इस t से 2 से 2 कटेगा, 2 बाई टाइम और t से t कटेगा, तो साइन पाई बाई 2. साइन पाई बाई 2 यानी प्लस 1 होता है 90 डिग्री की वैल्यू. तो इसका मतलब I इक्वल टू प्लस आई नॉट के इक्वल हो जाएगा. जब मैं यहां पर लूंगा टाइम t बाई 2, टाइम की वैल्यू t बाई 2, t से t कटेगा और 2 से 2 कटेगा, तो व्हाट रिमेन्स विद मी साइन पाई. साइन पाई की वैल्यू होती है जीरो, यानी जब हम t बाई 2 की बात करते हैं टाइम की, तो यहां पर करंट जीरो हो जाता है. जब मैं यहां पर 3t बाई 4 रखता हूं तो वैल्यू मेरे पास आती है 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 हमें पता है साइन 270 की वैल्यू होती है, और जो होती है -1. साइन 270 -1 यानी जैसे यहां साइन ओमेगा टी की जगह -1 आएगा तो आई इक्वल टू माइनस आई नॉट. तो 3t बाई 4 पर ये कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा. अगेन जब मैं साइन 2 पाई अपॉन टी के साथ में टी की वैल्यू टी रखूंगा तो ये जीरो कट जाएगा, और साइन 2 पाई यानी साइन 360 की वैल्यू अगेन जीरो होती है, करंट हो जाएगा जीरो. सिमिलरली यहां पर प्लस आई जीरो की वैल्यू आएगी. इस ग्राफ को मुझे फ्री हैंड ज्वाइन करना है. सी हाउ आई एम ज्वाइनिंग द ग्राफ. इस ग्राफ को मुझे फ्री हैंड ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स, और मेरे पास एक इस तरह का ग्राफ आने वाला है. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ग्राफ ऑफ एसी. अगर मुझे ईएमएफ लेना है तो यहां पर ई नोट और यहां पर माइनस ई नोट लिखूंगा. तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी. दिस इज ऑल अबाउट एसी एंड एसी जनरेटर. एसी जनरेटर से जो एसी मिला उसका वेव फॉर्म ये है. एसी जनरेटर से जो करंट मिला उसको ग्राफिकल फॉर्म में मैं ऐसे दिखाता हूं. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ alternating current. As we know, current is positive during positive half and current is negative during second half. फर्स्ट हाफ में करंट अगर पॉजिटिव है तो सेकंड हाफ में नेगेटिव, और वाइस वर्सा. ये नीचे से भी स्टार्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशन स्किल. अगर मैंने क्लॉकवाइज किया है तो पहला अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर पहला हाफ नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज ऑल.
Thank you for watching.